الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال أرزت علی الامم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي مع الرجلان والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن تكون أمتي فقيل هذا موسى وقومه ثم قيل لي انظر فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل لي انظر هكذا وهكذا فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فقيل هؤلاء أمتك وما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله ولكن هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتمون وفي رواية ولا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال أمنهم أنا يا رسول الله في رواية ادعوا الله لأن يجعل منهم قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبقك بها عكاشة. میرے دوستوں، واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، امت محمدیہ کی کثرت اس حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے، اور ایک بہت بڑا کریٹیکل ایشو تعویذ، دم، دھاگے اور جو ہے جو آج کل شرکیہ یہ سارے معاملات ہیں، اس کے بارے میں جو رائے حق ہے اور افراد اور تفریح سے بچتے ہوئے جو راستہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، وہ انشاءاللہ اس کو پورا آپ سنیں تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی اشکال باقی نہیں رہے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر میری ساری امت پیش کی گئی، یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام پچھلی امتیں دکھائی گئیں، یا خواب میں مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی. تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ان کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی. کسی کے ساتھ یعنی دوسری روایت میں یہ تفصیل موجود ہے کہ گزشتہ انبیاء کی امتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں 2-3 آدمی تھے، کسی کے ساتھ 10-12 تھے. اس کے علاوہ بعض انبیاء کرام پر ایمان لانے والے جو ہے وہ چند افراد تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی ایمان لانے والے نہیں تھے، اور کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ ہزاروں تھے. یہ امتیں تھیں تو ان میں ایک بہت بڑا گروہ نظر آیا، تو میں سمجھا کہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت باقی جو نبی تھے ان سے کوئی زیادہ ہوگی. پھر بعد میں میرے سامنے ایک بہت بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدان پر چھا گیا، سارے پہاڑوں پر چھا گیا. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کی امت ہے. پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ راضی ہو گئے، یعنی کیا اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کی تعداد اتنی زیادہ ہے جو کسی پیغمبر کی امت کی نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بڑی خوشی ہوئی، الحمدللہ میری امت کے اندر اتنی بڑی تعداد کے لوگ موجود ہوں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قیامت تک جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہیں گے اور آپ کے دین پر چلتے رہیں گے. لیکن جو کہنے والی بات ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی کہ انما هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب، یعنی یہ جو آپ کی امت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بلا حساب جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. پھر اس کی شرح خود فرمائی کہ وہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ کون لوگ ہوں گے جس کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک کے جس کو ہم دم کہتے ہیں اس کے وہ قائل نہیں ہوں گے. دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ لوگ بیماری کا علاج داغ لگا کر اور تعویذ گلے میں لٹکا کر جو شرکیں ہیں اسے نہیں کریں گے. اہل عرب میں چونکہ یہ رواج تھا جب کسی بیماری کا علاج کارگر نہیں ہوتا تھا تو اس وقت وہ لوگ لوہا گرم کر کے بیمار کے جسم سے لگاتے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ بدشگونی نہیں لیتے کہ فلاں بات ایسی ہو گئی تو اس سے بدشگون لینا شروع کر دیں. بدشگون کا مطلب ہے کہ بلی سامنے سے گزر جائے کہ آج ہمارا کام نہیں ہوگا، اور فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج ہم نے لباس کون سا پہننا ہے. لوگوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج ہم نے کھانا کیا ہے. تو اس طرح بدشگون کرتے ہیں، فلاں پرندہ بولے تو مصیبت آ جائے گی، فلاں بولے تو خوشی آ جائے گی، کوا بولے تو مہمان آ جائے گا، ہانڈی الٹی رکھ دینا اور پھر گلے جوتی جو ہے وہ گاڑی کے نیچے لٹکا. یہ بدشگونی ہے. چوتھی صفت ان کے اندر یہ ہوگی کہ وہ ساری باتوں سے قطع تعلق ہو کر ان کا توکل جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات پر ہوگا. وہ کسی چیز پر اعتماد اور یقین نہیں رکھیں گے، ان سے دور رہیں گے، اور ان کا ہر معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا. جن لوگوں میں یہ 4 صفت ہوں گی ان 70,000 افراد میں شامل ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. یہ جو 70,000 کا جو عدد ہے بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے جو عدد بیان کیا گیا ہے وہ 70,000 ہوں گے. بعض حضرات نے اس کی تشریح یہ بھی کی ہے واقعہ تو وہ 70,000 افراد ہوں گے، یا بعض حضرات نے یوں بھی اس کی تشریح کی ہے کہ 70,000 کا عدد جو ہے وہ یہ کثرت تعداد پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. یہ جو تعداد ہے یہ معین نہیں ہے بلکہ کثرت کو بیان کیا گیا ہے، تو اس کے لیے عدد بیان کر دیتے ہیں جو کثرت سے ہوں گے، جبکہ مقصود عدد بیان کرنا اس سے نہیں ہے بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہے. اسی طرح یہاں بھی اس عدد سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس امت کے بے شمار لوگ ہوں گے جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا یہ جو 70,000 افراد ہوں گے پھر ان میں سے ایک کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے، یعنی بہت کثیر تعداد میں یہ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے دور رہ کر وہ جنت میں بغیر حساب کتاب چلے جائیں گے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام عکاشہ تھا بن محصن، یہ محصن کے بیٹے تھے عکاشہ. یہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ انہوں نے عرض کی. جب سنا تو کیونکہ صحابہ کو طلب جنت اور طلب آخرت ہے تو وہ کہنے لگے فضل اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے نبی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیکیوں میں حرص کرنا چاہیے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جب آپ کو کوئی دعا کا کہہ دیتا تو آپ اسی وقت ہاتھ مبارک اٹھا لیتے تھے. تو میرے محبوب نے دعا اٹھائی، ہاتھ مبارک اٹھائے اور یہ جو ہے اس کے لیے دعا فرما دی. تو صحابہ کرام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور بھی کھڑے ہو گئے
وہ کہنے لگے अल्लाह के नबी हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उनमें दाखिल कर दे। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया साबका का बिहा उकाशा, अब तुम सबसे उकाशा सबकत ले गया है, क्योंकि अगर ये दुआ का सिलसिला जारी रहा तो फिर तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये सिलसिला मजीद दराज होगा। इसलिए जो है वो जो है अब सबका का बिहा उकाशा सबकत ले गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए ये है कि इन चीजों पर अमल करना, तुम खुद ब खुद उसमें दाखिल हो जाओगे। तो इसी वजह से इस हदीस का ये मफहूम है। हर मुसलमान को अब मैं ये अर्ज करूंगा कि ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब इस हदीस को सुने, और वैसे भी हर मुसलमान को इस दुआ को करते जाना चाहिए कि जो इस हदीस में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत है, उनके लिए जो दुआ की गई है, बशारत की दी गई है, उन लोगों के लिए बड़ी बशारत है कि वो जमात बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होगी। हमारा क्या मुंह कि हम कहीं अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमें इसमें वो जो है हमारे अमाल है कि हम ऐसे हो जाएं, लेकिन अल्लाह की रहमत अगर हो जाए तो अदना उम्मती भी ये दुआ मांगकर इसमें दाखिल हो सकता है और इन चीजों से बचकर वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो सकता है। तकलीफ यकीनी और फायदा गैर यकीनी। बहरहाल इस हदीस में 4 सिफात जो बयान की गई हैं, जिनमें ये 4 सिफत पाई जाएं, वो जन्नत में बिला हिसाब किताब दाखिल होंगे। और इनमें एक ये भी है कि एक हदीस में कि वो लोग दाग से अपना इलाज नहीं करवाते। उस जमाने में अहले अरब का यह तरीका था कि लोग जब किसी बीमारी का इलाज करवाते और दवा कार करना होता तो उनके यहाँ बात मशहूर थी, लोहा आग पर गर्म करके उस बीमार के जिस्म पर लगाया जाए, उसके जरिए मरीज को सख्त तकलीफ होती थी। जाहिर है कि जब जलता हुआ लोहा जिस्म से लगे तो क्या क़यामत ढाएगा। उनका यह ख्याल होता कि ये इलाज इस बीमारी को दूर कर देगा। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इलाज को पसंद नहीं किया, वो इसलिए कि इसकी तकलीफ नगद है और इसका फायदा जो है उसका कोई पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। तो इस वजह से जो है यानी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इसको नापसंद फरमाया है, क्योंकि इलाज करने में भी एतदाल था। ये आखिर दुआए अलकई, क्योंकि अरब के अंदर ये मशहूर था कि सबसे आखिरी जो इलाज है वो है दाग लगाना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया है कि इससे भी इराद करेंगे, क्योंकि अजमिलु फी तलब का माना ये है कि जब भी किसी काम की कोशिश हो करो तो उसके अंदर गुलू पैदा ना हो, एतदाल के साथ। तो अब दूसरी सिफत जो बयान फरमाई वो बदशगुनी है। इसका बयान पहले मैंने आपको बता दिया, इसका क्या माना है। माना ये है इसका कि बिल्ली अगर गुजर रहे होते हैं और बिल्ली गुजर जाए तो कहते हैं अब काम नहीं होगा, तो सफर को मुलतवी कर देते हैं। अब जब सफर का महीना आता है मुहर्रम में, तो उसमें कोई शादी नहीं करते कि ये बड़ी हुस्नों का मुसीबतों का महीना है। तो इस तरह किस्म के सफर के और मुहर्रम की जो अकायद बना रखे हैं इन्होंने, फलां दिन ये काम नहीं करना, फलां दिन ये काम करना है, तो इसके और कपड़े पहनने के रंग के, आज हमने खाना क्या है उसके, अगर कोई सामने से कुत्ता काट जाए तो कहते हैं अब हम काम नहीं बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि सामने से कुत्ता गुजर गया, इससे नुकसान होगा। फलां परिंदा बोले तो खुशी होगी, फलां परिंदा बोले तो नुकसान होगा। तो ये ऐसी बदशगुनियां हैं जो जहलत के जमाने की बातें हैं और इस्लाम के अंदर इनकी कोई गुंजाइश नहीं। और तीसरी सिफत यह है जिसको असल जो है वो आपने समझना है बड़े गौर और फिक्र से, क्योंकि इसमें बड़ी अफरात और तफरीद पाई जाती है। तीसरी सिफत यह बयान फरमाई कि वो लोग झाड़ फूंक नहीं करेंगे, यानी वो लोग जो जन्नत में बिला सबब दाखिल होंगे वो झाड़ फूंक के जरिए इलाज नहीं करते। इसके बारे में जरा तफसील समझ लें कि हमारे जमाने में झाड़ फूंक तवीज गुंडों के बारे में, जो कुंडे हैं तवीज कुंडे यानी तवीज धागे, उसके बारे में लोगों में अफरात और तफरीद पाई जाती है। बाद लोग वो हैं जो सिरे से झाड़ फूंक यानी दम के कायल नहीं और तवीज गुंडों को बिल्कुल कायल नहीं बल्कि कुफ्र अकीदा कहते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं। जैसे इस जमाने में जमातुल मुस्लिमीन बहुत ही यानी पूरी दुनिया की जमातों में सबसे ज्यादा शिद्दत पसंद और जो दूसरों पर कुफ्र और शिर्क के जो है उनके अलावा उनको कोई काम नहीं है वो हैं। और बाज़ ऐसे भी हैं जो अहले हदीस हैं जो इस किस्म की सख्त तस्लीम रखते हैं कि जो भी इस किस्म के दम दरूद करेगा या कोई तवीज लटकाएगा तो वो मुशरिक हो जाएगा, वो काफिर हो जाएगा, चाहे वो जितना भी मुआहिद क्यों हो, बल्कि इस किस्म के कामों को वो नाजायज और हराम कहते हैं। बाद लोग तो इस काम को शिर्क करार देते हैं और कुफ्र तक फतवा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और दूसरी तरफ बाद लोग इन तवीज कुंडों के इतने ज्यादा मुतक़िद हैं, इतने ज्यादा मुनहमिक हैं कि उनको हर काम तवीज के बगैर होता हुआ नजर भी नहीं आता। उनको हर काम के लिए एक वजीफा चाहिए, एक दम चाहिए, एक दरूद चाहिए, एक तावीज चाहिए, एक कुंडा चाहिए, दुकान चले तो तवीज चाहिए, शादी हो तो तवीज चाहिए, घर अच्छा चले तो तवीज चाहिए। वो इसी पे पड़े हुए हैं दरबारों पे और पीरों और फकीरों को तलाश करते रहते हैं कि तवीज दे दे मेरा फलां काम हो जाए, तवीज दे दे मेरा रिश्ता हो जाए, इसके लिए कोई वजीफा बता दे, रोजगार नहीं मिल रहा, इसके लिए कोई वजीफा बता दे, मेरा कर्जा नहीं उतरा, कोई तवीज देने, ये काम कर लें। देर रात लोग बस इसी फिक्र में रहते हैं। वो हमें हमारे भाई जो तकरीबन ये यानी बरेली भाई है हमारे और जो तशय्युअ हैं वो तकरीबन इसके अंदर ज्यादा इन्हमाक रखते हैं। हमें हाथ पांव जो है हिलाने की जरूरत कम पड़े, ज्यादा काम हमारा तवीयों से हो जाए। झाड़ फूंक में गैरुल्लाह से अक्सर ये है कि वो मदद मांगते हैं, तो वो इस किस्म की है कि ये हमारे लिए मुश्किल कुशा है। ये दोनों बातें अफरात और तफरीद के अंदर दाखिल हैं, यानी जो बिल्कुल कुफ्र कहते हैं वो भी अफरात और तफरीद में है और जो बिल्कुल इसके पीछे पड़े वो भी अफरात और तफरीद में। शरीयत ने जो रास्ता बताया वो इन दोनों इंतहाओं के दरमियान है, न बिल्कुल उस तरफ है न बिल्कुल उस तरफ है। कुरान और सुन्नत से जो समझ आए उस पर अमल करना चाहिए। तो ये समझना भी गलत है कि झाड़ फूंक यानी दम की कोई हैसियत नहीं या तावीज करना जायज नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि अगरचे इस रिवायत में लोगों की फजीलत बयान की गई है जो झाड़ फूंक नहीं करते, लेकिन खुद समझिए इससे हर किस्म का दम मुराद नहीं है, बल्कि इस हदीस में ज़माने जहलियत में जो दम का तरीका था उसकी तरफ इशारा है कि ज़माने जहलियत में अजीब गरीब किस्म के लोग मंत्र पढ़ते थे, शिरकिया अशार पढ़ते थे, शिरकियां बातें पढ़ते थे। वो मशहूर था कि ये मंत्र पढ़ो तो इससे फलां बीमारी का इफाका होगा, फलां अगर मंत्र और फलां जो है वो गैरुल्लाह से मदद मांग के दम करो तो फलां जगह पे इसको इफाका होगा। इन मंत्रों में अक्सर बेशतर जिन्नात और शैतान से मदद भी मांगी जाती थी, किसी में बुतों से मदद मांगी जाती थी। बहरहाल इन मंत्रों और इन दमों को अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने रोका है और शिरक करार दिया है कि ये गैरुल्लाह से मदद मांगना और मुशरिकाना अल्फाज। और आज के दौर में भी हम सुनते हैं कि दम कर रहे होते हैं, जब अल्फाज ज़हन में आते हैं सुनने में तो वो मुशरिकाना होते हैं। तो ये बिल्कुल ही शिरक है और बिल्कुल ये कुफ्र की तरफ ले जाता है। दूसरी खराबी ये थी कि अहले अरब इन अल्फाज को बजाते खुद मुअस्सर मानते थे कि ये लफ्ज पढ़ेंगे, इन लफ्जों की वजह से जो है वो तासीर है और हमें शफा मिल जाएगी। बजाते खुद किसी लफ्ज में तासीर समझना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हटाकर गैरुल्लाह से मदद मांगना, बिल्कुल ये शिरक है। तो ये उस वक्त करते थे। और तवीज भी इसी तरह होता था, जब वो किसी के गले में लटकाते तो वो मनकने होते और उन्हीं को मुअस्सर समझते और उसमें कुछ में शिरकिया बातें होती वो लेकर लटकाते। तो ज़माने जहलियत का दम और ज़माने जहलियत के तवीज कुंडों में मुब्तला नहीं होना चाहिए, इससे हुजूर अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। अगर कोई इसमें मुब्तला हो गया यानी ज़माने जहलियत का दम और ज़माने जहलियत का तवीज जो शिरक पर मुब्तला है, तो वो बंदा जो है वो कुफ्र के दिहाने पे पहुंच जाता है और उसके लिए जहन्नम की वाइद है। जो इनसे बचेगा वो बिला हिसाब जन्नत में जो है वो दाखिल होगा। अब इस थोड़ी सी हकीकत को समझ लें कि ये कारखाना हयात, ये कायनात का पूरा निजाम अल्लाह ताला का बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ चीज़ों में मुख्तलिफ खासियतें
मुख्तलिफ तासीरें रख दी हैं। मसलन पानी के अंदर ये तासीर रखी, वो प्यास बुझाएगा। आग के अंदर जलाने की खासियत रख दी है, अगर अल्लाह ताला ये तासीर आग से निकाल दे तो आग जलाना छोड़ देगी, जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए गुजार बना दिया। और इसमें मिट्टी में ये तासीर रखी कि मुख्तलिफ किस्म की चीजें, इससे अजनास जो इंसान पसंद करते हैं वो इससे निकलेंगे। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसानों में, जिन्नात में, जानवरों में, शैतान में मुख्तलिफ किस्म की ताकतें और अल्लाह ताला ने तासीरें रख दी हैं। हर एक की ताकत का म्यार और पैमाना मुख्तलिफ है। शेर जितना ताकतवर है, इंसान उतना ताकतवर नहीं, लेकिन इल्म में इंसान उसे गालिब है। सांप के अंदर जहर रख दिया, वो किसी को काट ले तो मर जाएगा, लेकिन इन सबसे अल्लाह तासीर निकाल दे तो कोई भी ताकत अपनी काम नहीं कर सकती। तो इस यानी मिसाल के तौर पर जो बाज़ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि फलां बंदा तो काफिर और मुशरिक है, लेकिन उसके दम में जो है वो बड़ा शिफा है। लेकिन ये बात जरूरी समझ लें कि शिफा सिर्फ ये नहीं कि मोमिन ही कर सकता है, बल्कि यहूदी भी करते थे तो शिफा हो जाती थी। यानी वो जिन्नात और इस किस्म की गंदी चीजें वो गुसल नहीं करते और शैतान से कुछ दोस्ती कर लेते हैं, तो उनके जरिए वो कुछ अल्लाह ने उनको ताकत दी हुई है, तो वो से हो जाता था। लोग समझते थे ये बड़े पहुंचे हुए हैं, जैसे आजकल के दौर में है। तो इसलिए लेकिन अब जो दरमियाना हिस्सा है उसको समझने के लिए ये बात ज़हन में रखें, जो दम और जो तावीज़ मना है वो शिरकिया है। अब जो सही दम है वो कुरान और हदीस से साबित है, वो मैं आपको बताता हूं। यानी हदीस से साबित हो तो समझो कुरान से भी साबित है, अगर कुरान से समझो तो समझो कि हदीस से भी साबित है। इसका मतलब ये होता है, यानी अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी शिरकिया कलमात से रोकने के बावजूद आपने खुद अल्लाह जल्ल शानहू के नाम मुबारक से झाड़ फूंक किया, यानी दम किया है। सहाबा कराम को ये तरीका सिखाया है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स बीमार हो जाए तो ये कलमात कहे। सही बुखारी किताब अल मर्ज़ा बाब दुआ आयद लिल मरीज में ये हदीस मौजूद है। अल्लाहुम्मा रब्बना अज़हिबिल बास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कोई शख्स, ये तरीका सिखाया आपने, फरमाया जब कोई शख्स बीमार हो जाए ये तो ये कलमात कहे। तो बाद औक़ात आपने कलमात सिखाकर फरमाया इन कलमात को पढ़कर थूको हाथ पर, और उसके लिए आप अपने ऊपर जो है वो हाथ फेर लो। आपने खुद भी इस पर अमल किया, सहाबा कराम को इसकी तलकीन फरमाई। तो इसका मतलब है ये ऐसा दम है जो खुद हुज़ूर ने बताया। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की एक रिवायत है, और ये रिवायत भी खुद अल्लाह के नबी सही मुस्लिम के अंदर किताब सलाम के अंदर ये मौजूद है, और तकरीबन सही बुखारी में भी हदीस मौजूद है किताब दावात में, कि खुद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना का मामूल था कि रात को सोने से पहले मुअव्वज़तैन पढ़ते, और फिर रिवायत में है कुल या अय्युहल काफिरून का भी इजाफा है एक रिवायत में, अऊज़ु बिरब्बिल फलक व अऊज़ु बिरब्बिन नास। इन तीनों सूरतों को तीन तीन मरतबा पढ़ते, फिर अपने हाथों पर खुद दम करते, फूंक मारते, और फिर पूरे जिस्म पर हाथ फेर लेते। ये झाड़ फूंक खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और हमने ये भी फरमाया इस अमल के जरिए शैतानी असरार से हिफाजत रहती है, सांस से और फजूल हमलों से इंसान महफूज रहता है। तो ये मुस्लिम और बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, खुद आपने खुद दम किया। तो इससे ये साबित हुआ कि दम बिल्कुल शिर्क नहीं है, अपने आप को खुद बंदा दम कर सकता है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की मर्ज़ वफ़ात में जब आप साहिब फिराश थे, इतने कमजोर हो गए थे कि अपना दस्ते मुबारक भी महबूब उठाने पर कादिर नहीं थे, तो हज़रत आयशा फरमाती है मेरे ख्याल आया कि रात का वक्त है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्र ये अमल फरमाते रहे, मुअव्वज़तैन पढ़कर अपने हाथों पर दम फरमाते रहे, फिर इन तीनों हाथों सारे जिस्म पर आप अलैहि सलाम जो है वो फेरते थे। लेकिन चूंकि आज आपके अंदर वो हाथ उठाने की वो सकत नहीं रही, चुनांचे मैंने खुद मुअव्वज़तैन पढ़कर अल्लाह के रसूल के दस्ते मुबारक पर दम किया। यानी पढ़ा हज़रत आयशा ने और दम किया हज़रत रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक, आप ही के दस्ते मुबारक को आपके जिस्म पर फिर मैंने फेर दिया, क्योंकि जो मेरे हाथों से महबूब के हाथ मुबारक ज्यादा बरकत वाले थे। तो इसका मतलब है पढ़ा हज़रत आयशा ने और फूंक मारी महबूब अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक। तो दूसरा भी किसी को दम कर सकता है, इससे ये भी साबित हो गया। तो गोया कि ये ऐसे दम है जिनमें कोई शिरक कुफरिया अल्फाज नहीं थे, ये मुअव्वज़तैन है। और एक रिवायत बुखारी शरीफ में और भी है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला एक वाक़या है बुखारी शरीफ में कि एक मरतबा सहाबा किराम का एक काफ़िला कहीं सफर पर जा रहा था, रास्ते में उनको ज़्यादा रह खत्म हो गया, खाने पीने का सामान खत्म हो गया। रास्ते में गैर मुस्लिमों की एक बस्ती पर जो है उस काफ़िले का गुजर हुआ। उन्होंने जाकर बस्ती वालों से कहा मुसाफिर लोग हैं और खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने का सामान हो तो हमें दे दो। उन लोगों ने शायद मुसलमानों से तासुब और मजहबी दुश्मनी की बिना पर खाना देने से इनकार कर दिया, हम तुम्हारी मेहमानी नहीं कर सकते। सहाबा किराम के काफ़िले ने बस्ती के बाहर पड़ाव डाल दिया, रात का वक्त था, उन्होंने सोचा कि रात यहाँ पर गुजार कर सुबह किसी और जगह पर खाना तलाश करेंगे और सफर करेंगे। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस बस्ती के सरदार को सांप ने काट लिया। अब बस्ती वालों ने सांप के काटने की जितनी इलाज थे वो सब आजमा लिए, लेकिन उसका जहर नहीं उतर रहा था। किसी ने उनसे कहा कि सांप का जहर उतारने के लिए दम की जरूरत है, अगर वो दम जानने वाला हो तो उसको बुलाया जाए ताकि वो आकर जहर उतार दे दम के जरिए। उन्होंने कहा बस्ती में तो ऐसे कोई दम करने वाला नहीं, शायद कोई काफिले में ये कोई बंदे मौजूद हों। तो वो बस्ती से बाहर निकले और जाकर बात की उनसे सहाबा कराम से कि तुम में कोई ऐसा शख्स है जो सांप का दम कर दे। चुनांचे बस्ती के लोग हज़रत अबू सईद खुदरी काफिले के लोग आए और पूछा कि आप में कोई शख्स है जो सांप के डसे को दम कर दे। बस्ती के एक शख्स को सांप ने डस लिया है, वो हमारा सरदार है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है मैं दम कर दूंगा, लेकिन तुम लोग बहुत वकील हो के एक मुसाफिर काफिला आया है, तुमसे कहा कि उनके खाने पीने का इंतजाम करो, तुमने उनके खाने का कोई इंतजाम नहीं किया। बस्ती वालों ने कहा बकरियों का एक रेवड़, यानी बाज़ जगह 19 और बाज़ जगह 29 का लफ्ज़ आया है, लेकिन हमारे आदमी जो है वो इसका और तुम हमारे पास आए हो कि हम तुम्हारे आदमी का इलाज कर दें। चुनांचे अबू सईद खुदरी खुद अपना वाक़या सुनाते हैं कि मुझे दम का तो कुछ नहीं आता था, लेकिन जब वो मुझे ले गए तो मैंने सोचा कि अल्लाह के कुरान में बरकत है, ये लफ्ज़ हैं कि अल्लाह के कुरान में बरकत है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ बस्ती में गया, वहां जाकर सूरत फातिहा पढ़कर मैं दम करता रहा। एक सहाबी कर रहा है सूरत फातिहा पढ़ के किसी दूसरे को दम, तो सूरत फातिहा पढ़ता और दम करता। अब यहां से जो लोग कहते हैं दम करना है ही कुफ्र, तो अब सहाबी पर फतवा लगाएं कि वो सूरत फातिहा पढ़ के दम कर रहा है, वो भी किसी और को। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसका ज़हर का असर इसी सूरत फातिहा के दम की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी फजल और करम से उतार दिया। वो लोग बहुत खुश हुए, उन्हें वो बकरियां दे दी जो उन्होंने उनसे मुआहदा किया था। बकरियां लेकर जब आए तो आप सहाबा में ये बहस छिड़ गई, क्योंकि आपने कुरान पढ़ा है तो इसके बदले में आपने लिया दम करने के, तो कुरान पढ़ के तो फिर आप इसको जायज कैसे समझ रहे हैं। तो सहाबा में इख्तिलाफ हुआ और सहाबा के इख्तिलाफ में ये बात होती थी कि जो फैसला अल्लाह के रसूल फरमा दें वो उस पर खामोश हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में अगर किसी का कोई अकीदा बन गया है, उसके खिलाफ कुरान दिखाओ या हदीस दिखाओ तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके खिलाफ जो हो गया। तो ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए, कुरान हदीस के मुकाबले में जिद नहीं करनी चाहिए। लिहाजा जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने न पूछने सहाबा ने कहा इसको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जब आप मदीना पहुंचे कि अल्लाह के नबी हमें ये बकरियां मिली और इस तरह मैंने सूरह फातिहा को दम किया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा
तुम्हें ये कैसे पता चला कि सांप के काटने का ये इलाज है? तो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि बेहुदा किस्म के कलाम में तसीर हो सकती है, अल्लाह के कलाम में तो बदरी की औला तसीर होगी, इस वजह से मैं सूरह फातिहा पढ़ता रहा और दम करता रहा, अल्लाह ताला ने उसको फायदा पहुंचा दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अमल से खुश हुए, उनकी ताईद फरमाई और बकरियों का वो रेवड़ रखने की इजाजत फरमाई, फरमाया कि खुद भी इसको इस्तेमाल करो, मुझे भी दो और मदीना में इसकी दावत कर दें। तो इसका मतलब ये है कि इस किस्म का दम करना और खुद जायज़ अपने आप को भी कर सकते हैं, किसी और को भी कर सकते हैं। अब जो लोग बिल्कुल दम को जो है वो शिर्क करार देते हैं, उनको होश करना चाहिए कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस जो है सहाबा के अमल पर और हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर वो कितना जो है वो इनकार करते हैं। इसलिए जिद और तअस्सुब छोड़कर जो सही दम है उसकी इजाजत है कुरान हदीस में, अपने आप को भी कर सकते हैं, किसी और को भी कर सकते हैं। और जो शिरकत दम है वो बिल्कुल कुफ्र है और शिरक उससे बचना चाहिए। अब तावीज़ की तरफ आ जाएं। जो बात लोग कहते हैं कुरान की अगर आयत भी लटका दी या कोई वजीफा आपने लटका दिया तो वो भी कुफ्र हो जाएगा, तो उसके बारे में भी सुनने, ये भी अफरात व तफरीद है। वो तावीज़ और वो जो है मनकना और वो धागे हराम है जिस पर शिरक जो है वो साबित होता है और वो शिरक के कलमात कहे गए या उन्हीं को मुअस्सर समझा जाए कि ये मैं पहनूंगा फिरोजा तो मुझे शफा मिल जाएगी, वो बिल्कुल शिरक है। लेकिन अगर कुरान की आयत है और वो उसको मुअस्सर इसलिए समझता है कि अल्लाह ने इसमें तसीर रखी है, रब चाहेगा तो मुझे शफा मिलेगी, एक यानी दुनियावी तरीका इलाज है, तो इस किस्म का जो है वो बिल्कुल कुफ्र और शिरक नहीं है, वो बल्कि हदीस पाक से साबित है। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत सारे सहाबा किराम को ये कलमात सिखाए, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। और एक रिवायत में औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इकाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शैतान। ये तिरमिज़ी किताब अत-तिब में और ये जो है तिरमिज़ी शरीफ किताब अद-दावात में ये हदीस पाक मौजूद है कि जो है वो इस किस्म के जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखाया करते थे। बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम जो यहूदी मुसलमान हुए थे और जो है यहूदी जब उनके दुश्मन हो गए तो उन पर वो जादू वगैरह करते रहे, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको भी ये कलमा सिखाया कि आप इसका पढ़कर अपने ऊपर दम किया करो। और ये बुखारी किताब अत-तिब के अंदर ये मौजूद है, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक वल्लाहु खैरुन हाफिज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। पर ये किताब अत-तिब बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम को अल्लाह के नबी ने पढ़ा कि ये इसको पढ़कर अपने ऊपर दम किया करो। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया अगर रात को सोते हुए किसी की आंख घबराहट से खुल जाए, उसको खौफ महसूस हो तो वो ये कलमात पढ़ ले। जो चुनाचे ये जो मैं हदीस तिरमिज़ी वाली बता रहा था वो ये अब्दुल्लाह बिन उमर की वो ये है कि अपनी बड़ी औलाद को तो मैं ये कलमात सिखा देता था, याद करा देता था, ताकि उनको पढ़कर वो उनके ऊपर दम करते रहा करें, अपनी बड़ी औलाद को। और जो छोटी औलाद पढ़ नहीं सकती थी, अब इनको समझना चाहिए जो जमात मुस्लिमीन वाले हैं, ये कोई ऐसे लोग जो कहते हैं जो गले में लटका दें तो ये कुफ्र हो जाता है। अब तिरमिज़ी की इस रिवायत में जो किताब अद-दावात के अंदर ये यानी मौजूद है ये हदीस, तो उसमें हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर क्या फरमाते हैं कि जो मेरी छोटी औलाद थी जो पढ़ नहीं सकती थी तो मैं जो है उसको कागज पर लिखकर उनके गले में डाल देता था। अल्फाज कौन से? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन गज़बिही व इकाबिही व मिन शर्रि इबादिही व मिन हमज़ाति शैतान। ये लफ्ज़ हैं तिरमिज़ी किताब अद-दावात में कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं जो बड़े होते थे उनको मैं पढ़कर दम करता था खुद, और ये उनको सिखा देता था, वो खुद दम करते थे, और जो छोटी औलाद होती थी कागज पर लिखकर मैं उनके गले में डाल देता था, फिर और ये एतमाद करता था कि अल्लाह इसको शिफा देगा, तो फिर वो मैं उनके गले में डाल देता। अब मैं इनसे पूछता हूँ, तिरमिज़ी किताब अद-दावात बल्कि अबू दाऊद में और बहुत सारी कुतुब हदीस में ये हदीस मौजूद है, अब सहाबी पर जो है वो फतवा लगाएं कि ये सहाबी शिरक कर रहा है। तो अब ये बात याद में रखें, याद रखें, इसी बात को याद रखें, जो तावीज़ और जो दम वो शरीयत में मना है वो हैं जिन पर जो है वो यानी शिरक हो और वो उन्हीं को ही कारगर समझें और तवीज़ लटकाएं, तो चुनाचे वो तमाम के तमाम शिरक हैं। और एक रिवायत ये पेश करते हैं, यानी बाद लोग ये समझते हैं तवीज़ लटकाना जो शिरक है, गुनाह है, उसकी वजह एक हदीस है जिसका मतलब वो लोग सही नहीं समझे, खास कर ये किताब ये जमात मुस्लिमीन वाले, इनके नतीजे में तवीज़ लटकाने को वो नाजायज़ समझते हैं। चुनांचे हदीस पाक है इन्न रुका व तमाइमा व तौलत शिरकुन, यानी इस हिसाब से कि यानी वो जो तवीज़ हैं, जो धागे हैं और जो तमीमा हैं, तो वो सब के सब शिरक हैं, वो इसी हदीस से उनको धोखा लगा है। तो अब जो पिछले हदीस मैंने आपको जिक्र किए हैं, अगर ये हदीस उन्हीं पर है कि सही जो कुरान की आयत है, ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाए हैं, अगर वो लटकाना शिरक होता तो अब सहाबी क्यों लटकाता? तो इसका मतलब यही है कि जो उनको समझना चाहिए और खौफ खुदा करना चाहिए कि हर एक पर कुफ्र का ये फतवा लगा देते हैं, वो ये है कि इस किस्म का तावीज़ शिरक है। हाँ, जो जिस पर यानी तमीमा अरबी ज़बान में सीप की उन कोड़ियों को कहा जाता था जिनको ज़माने जाहिलियत में लोग धागों में परोकर बच्चों के गले में डाल दिया करते थे और उन कोड़ियों पर मुशरिकाना मंत्र पढ़ा करते थे, मुशरिकाना बुतों से और जिन्नात से वो मदद मांगते हुए, और उनको बजाते खुद वो मुअस्सर समझते थे कि ये खुद शिफा देते हैं। तो ये एक मुशरिकाना अमल था जिसको तमीमा अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, तो वो शिरक है। तो इससे वो गलत समझे हैं कि दम हर किस्म का। अब पिछली रिवायत मैंने आपको पढ़ दी है कि साहबा दम भी करते थे, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वाली हदीस तो बिल्कुल, बल्कि आप इस्लाम 360 में लिखें तो वो बिल्कुल स्टेटस भी सही है, और बाकी कुतुब हदीस में मौजूद है कि वो लिखकर अपने बच्चे के गले में डालते थे। तो लेकिन अब इसके लिए कुछ शराइत हैं, लेकिन जहां तक अल्लाह ताला के नाम के जरिए दम करने का ताल्लुक है वो खुद हुजूर अक़दस और आपके सहाबा से साबित है, इसलिए वो ठीक है। लेकिन इसके जवाब के लिए चंद शराइत इंतहाई जरूरी है, इसके बगैर ये अमल जायज़ नहीं है। पहली शर्त ये है ये कलमात पढ़े जाएं, इसमें कोई कलमा ऐसा ना हो जिसमें अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगी जाए। जो अक्सर लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, वो सब शिरक के अड्डे हैं, उनसे बचना चाहिए। खुद पढ़ना चाहिए। ये ऐसे बंदा आप खुद नहीं पढ़ सकता तो बंदा किसी ऐसे से कहे जो मुआहिद आदमी है। इसलिए बाद औक़ात में फलां के अल्फाज होते हैं कि या अल्लाह, इस जगह पर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाता है, ऐसा तवीज़, ऐसा दम, ऐसा कुंडा, ये सब गैरुल्लाह से मदद ली जाती है और शिरक है। दूसरी शर्त ये है कि अगर दम के अल्फाज या तवीज़ में लिखे हुए अल्फाज ऐसे हैं जिनके माने ही मालूम नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, अब मैंने मुझे एक शख्स ने तवीज़ दिखा, पता नहीं क्या हनुमान, पता नहीं किसकी तवीज़, तो ये शिरक है, बिल्कुल इनसे बचना चाहिए। सिर्फ एक दम ऐसा है जिसके माने मालूम नहीं लेकिन हदीस पाक के अंदर है, और वो हदीस पाक जो है मोजम अल कबीर में और मुसन्नफ इब्न शैबा में मौजूद है कि अल्लाह के नबी हदीस पाक में एक सहाबी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने याद किया कि एक ऐसा अमल है कि अगर सांप जो बिच्छू काट ले तो उसके कांटे का असर ज़ायल करने के लिए, उसके शर से महफूज रहने के लिए ये अल्फाज हम पढ़ते हैं। वो अल्फाज क्या हैं? शुज्जतुन कुरनियतुन मिलहतु बहर किफता,
یہ لفظ وہ ہیں جس کے معنی معلوم نہیں، شاید عبرانی لفظ ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر خاموش رہے. تو یہ ایک ایسا دم ہے جو حدیث پاک میں ہے، مصنف ابن شیبہ میں اور معجم الکبیر میں یہ حدیث موجود ہے. تو اس کے لفظ معنی معلوم نہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پیش کیا گیا تو آپ نے ان کو منع نہیں فرمایا. شاید عبرانی کے کوئی اچھے لفظ ہوں گے تو حضور علیہ السلام خاموش رہے. تو ایک ایسا. باقی کوئی بھی تعویذ ہے، کوئی بھی چیز جس کے معنی اب 1 2 3 لکھ دیتے ہیں، 786 اس طرح اردو نمبر لکھے ہوتے ہیں، یہ بالکل حرام اور بالکل ان سے بچنا چاہیے. اور دوسری طرف یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم اور متقی اور ولی وہ ہوتا ہے جو تعویذ اور دم کرے. یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ متقی جو لوگ ہیں یا اللہ والے لوگ ہیں وہ تو ان چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہ بس اتنا وہ لیتے ہیں جتنا حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے. باقی وہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں پڑتے، جیسے آج کل کے ہر چیز تویز، ہر چیز تویز. تو یہ بالکل دھندا بنایا ہوا ہے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے اور توکل صرف اللہ پر ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کام تویز کے ذریعے، ملازمت تویز کے ذریعے اور فلاں دکان تویز کے ذریعے، بالکل غلط ہے. ان سے غلو ہے اور یہ سنت ہے. ہاں جتنا ثابت ہے دم اتنا پہلے خود کریں. خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ سنت سے ثابت ہو. اور جو ہے تویز، یہ بہتر یہ ہے کہ نہ لٹکایا جائے، چاہے قرآن کا یا کوئی ہے، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اصل میں ہے بھی صحیح، تو اس قسم پر پھر فتویٰ کفر کا لگا دینا یہ بھی اسٹریم ہے. اصل چیز جو ہے وہ دم اور تویز دعا ہے. یعنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں، اللہ پاک سے دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں تویز دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے دم دیا ہے، وہ اصل دعا ہے کہ دعا کے ذریعے جو ہے اپنی مصیبتوں کا حل کرائیں. نہ کہ یہ نام نہاد جو بیٹھے ہوئے ہیں ننگے دھڑلے مشرکین اور اڈے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی قدیاں، اپنی درباریں اور اپنی جو ہے وہ ساری چیزیں بھری ہوئے ہیں، یہ سب شرک کے اڈے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اللہ کی مسجد کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور سنت کے ساتھ تعلق لینا چاہیے. تو یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس وجہ سے کی ہے تاکہ لوگ جو اسٹریم میں ہیں ان کو بھی پتہ چل جائے کہ کس حد تک جو ہے یہ قابل اعتماد ہیں اور کس حد تک جو ہے ان کو پکڑنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور کس حد تک یہ ناجائز ہیں. اور لوگ تو اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ مسجد سے نکلا تو وہاں ایک عامل پیر صاحب آئے ہوئے تھے، لوگ لینے قطار بنا کے کھڑے تھے، وہ ان کے منہ میں تھوک رہا تھا اور اس تھوک کو وہ شفا سمجھ رہے تھے. اور کچھ ڈونگے، کچھ بالٹیں لے کے کھڑے تھے، جگ لے کے کھڑے تھے تاکہ لوگ وہ اس میں تھوک دے اور اس کو تھوک کو وہ چاٹ رہے تھے کہ اسے شفا ہوگی. اب مجھے خود آپ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے دین؟ اور اتنی چیزیں گندے کیچڑ کے پانی میں نہاتے ہیں، کیچڑ پیتے ہیں، گندگیاں کھاتے ہیں اور ان کے جو ہے وہ کیچڑ چاٹتے ہیں، وہ ننگے ہیں اور وہ گندی چیزیں دیتے ہیں، تو اس پر یہ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو علماء اس کی محنت کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے دور رہا جائے وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ جو جائز کام کی اگر اجازت دے دیتے ہیں تو لوگ حرام کام میں پھر مبتلا ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی خود بذات خود وہ جائز عمل کی کسی کو یعنی دکانداری بنائے خود دم کر سکتا ہے اور جس حد تک قرآن حدیث سے ثابت ہے اس پر عمل بھی کر سکتا ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.